Backstage has been a rage. Congratulations to the entire team. Today we've got this track which is rolled out. It is beautiful. So before we even go further, I would request Reese and Sohail singing something on the song, your favorite one. Okay, let's sing the song. We'll sing the hook. Yeah. 3, 2, 1 दुनिया बेकार है सच्चा तेरा प्यार है सच्चा तेरा प्यार है दुनिया बेकार है दुनिया बेकार है सच्चा तेरा प्यार है सच्चा तेरा प्यार है दुनिया बेकार है थैंक यू I think that was just making me want to hear a It's little the more. hook Yeah. of our song. या Something more in it? मोहन सारे सितारे हाँ. सारे सितारे हैं यहाँ बस तू ही अकेली चांद सी है कोई रहे या ना रहे तेरा होना ही जरूरी है जो मेरे रूबरू आना है मैंने अब मेरा खुद को भूला पर याद तू है इतने नशे के भी बाद तू है जाने क्यों दुनिया बेकार है सच्चा तेरा प्यार है सच्चा तेरा प्यार है दुनिया बेकार है दुनिया बेकार है सच्चा तेरा प्यार है सच्चा तेरा प्यार है दुनिया बेकार है थैंक यू Wonderful, that's really very nice. And before we begin, wishing you a very happy birthday. Thank you. What better day to release your song? What do you have to say the whole concept of Backstage? How did it begin? And reaching on to this song today. So we announced the backstage on Suhail's birthday, and we got the मेरा favorite वाला गाना on my birthday. So I'm happy with that. Absolutely. So, what's the concept of Backstage? So backstage concept is very easy. Like every artist needs a platform. So we also wanted a platform, but we were looking forward. We have to do something very out of this industry, very different. So we met DTM Yash Bhai, and that's how we began to think about backstage. Then we met Akash, the director of backstage, and similarly, with the growing roots, we met amazing artists like Khanzadi. We met Raj Burman, we met Kavita ma'am, and everyone like got into this. Okay, कुछ ना कुछ they also had the vision, right? Okay, let's make it big. Why to just कैसे भी करके we know not going to release it ऐसे ही करके कुछ भी करके. So everyone had like सबका effort है इस गाने में, सबका every artist, and that's why सब इतना प्यार मिल रहा है इस गाने को. Backstage is a platform for music, be it new artists or known artists. They come together to create something magical, and unstoppable. So yeah, we want to create something which is unforgettable and just break the boundaries. Artists getting merged, be it new ones, best knowns, they're getting merged on a single track, and that's why we created Backstage to create a history. Thank you. You're composing and then having Kavita ji sing for your Raj. That's been just like a wonderful experience, I'm sure. Tell us more about that. So yeah, that's a very actually like amazing collaboration because it was something very different. A pop and different voice like Khan Sadi with Raj Burman being the male voice, and Kavita ma'am is actually she's a legend, and उनका ये गाने में आना was like the best part of the song. तो ये गाना इतना प्यारा collaboration है, every artist has given their best, so that's how we are very happy with the song. Nandini, what's been your experience on Backstage? You're an essential part of the song. Oh, it's lovely. I'm really grateful to be a part of Backstage, and they are very hardworking, very supportive. बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे. मैं तो रैपर हूँ, बेसिकली मैं रैप करती हूँ, पर इन्होंने मुझे बोला कि नो, यू नो व्हाट, यू हैव अ पॉप वॉइस, तो आपको ना गाना भी गाना चाहिए. यू नो, जस्ट एक्सपेरिमेंट. एंड फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है मेरा लाइफ का ये, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिस गाइज जिन्होंने समझा मेरे टैलेंट को. और मैं डे बाय डे सीख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ इन दोनों से, एंड होपफुली आगे जाके भी हम और काम करें. दैट्स व्हाट आई विश. Definitely. एंड या लवली. So technically, this gets your debut is released. Yes, yes. On singing. Yes. That's brilliant. एक गाना अच्छा गाना बनने में बहुत अच्छी लिरिक्स की बहुत ज़रूरत होती है.
बहुत अच्छा लिखा आपने। तो क्या ब्रीफ रहा, कैसा रहा, हुक स्टेप टू एवरीथिंग? ये एक्चुअली अभी जल्दी में मेरी शादी हुई थी, तो मैं गांव से यहाँ आया मुंबई, तो शाम को लिटिल लिटिल कहीं पे हो गया था, तो मैडम याद आ रही थी। अब वो थॉट आ गया कि इतने नशे की भी बात तो भूल ही नहीं पा रहा था, तो और इन लोगों ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया, और अब आप लोगों के माध्यम से सारी दुनिया तक जाएगा। बस आप सब लोग उसे प्यार दें, पर हाँ, ये दिल से निकली बात है और मुझे पता है दिल तक पहुँचेगी। Lovely. आकाश, बहुत बहुत अच्छे से बेहतरीन वे से आपने उसको डायरेक्ट किया। इनफैक्ट समरी आल्सो वाज ब्यूटीफुली डायरेक्टेड बाय यू। ये गाने में कविता जी है, राज कमल है, वेरी आर्टिस्ट एंड दे ऑल डिड देयर पार्ट वेरी ब्यूटीफुली। So with backstage it's always big. So I don't get it's much more like कि मेरे को सिर्फ एक और दो आर्टिस्ट नहीं मिलते। दो आर्टिस्ट तो मेरे साथ ही बैठे रहते हैं हमेशा। एंड जब मेरे पास दम अली भी आया था, इट वाज अगेन वी आर लाइक, आपने देखा इट वाज अ मल्टी स्टार, देयर वर 5 सिंगर्स इंक्लूडिंग। सिमिलरली विद सेकंड सॉन्ग आया तो इट वाज लाइक लुकिंग कि हम लोग 2 लोग करेंगे पहले कि क्या करेंगे, लेकिन फाइनली एक कॉल हुआ कि नहीं, लेट्स स्प्लिट इट इनटू 3, और वो वापस हमारे फॉर्मेट में आ गया। एंड देन वी केम अप विद दुनिया बेकार है एक सॉन्ग हमारा, और 5 आर्टिस्ट आर ब्रिलियंट आर्टिस्ट, सॉन्ग ब्यूटीफुली। और वीडियो वाइज आप लोगों ने देखा कि हाउ वाज इट, एंड आई होप फर्स्ट आपने दमली भी फॉलो किया है हमें विद द मीडिया, एंड सेकेंड आप फिर वापस दुनिया बेकार है देख रहे हैं, तो ऑडियंस इज मच मोर द रिसेप्टिव वन, जो हमको व्यू बताते हैं कि कौन अच्छा है। सो आई होप यू ऑल गाइस आर You know, you both have been students of Mitibai, and coming back to Kshitij and launching your song must be a very enriching experience. Why? Because Kshitij is actually, I'm very connected to Kshitij because I always used to see कि many artists are coming and performing. It was a dream to perform in Kshitij, which I hope comes true on the pro nights. But before that, I was like, I want to stay connected to Kshitij. मुझे ये backstage को Kshitij के साथ जोड़ना है. So Sohail and I decided that let's sponsor Kshitij. So we are the associate sponsor for Kshitij, and इसी के साथ हम अभी आगे जितने भी गाने we'll do it here. जब आप दोनों गाना कंपोज करते हैं तो दोनों भाइयों में झगड़ा होता है नहीं? नहीं. जैसे फीमेल्स होते हैं, I- ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं। अभी एक्चुअली क्या है, फिल्म है, हर चीज़ है, तो उसके हिसाब से जो भी कंपोज बनती है, अगर कोई पसंद नहीं आती वो कहीं और चली जाती है, बाकी तो As I said before, ये लड़ाई होती है, लेकिन म्यूजिक सॉल्व कर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन एंड में सोल्यूशन होता है, जीतता वही है, हमारा म्यूजिक जीतता है। सो या इट्स नॉट रमीज, इट्स नॉट सोहेल, इट्स रमीज सोहेल म्यूजिकल। देसी तरह का म्यूजिक, reason to it, especially from you, I would like to know what you would like to say for music. देसी तरह का म्यूजिक इज एक्चुअली द बिगेस्ट लेबल कमिंग, या एंड आई नो दैट, एंड आई से इट बिकॉज आई नो इट, क्योंकि इतना एक विजन को आगे लेके जाना, इट्स वेरी हार्ड फॉर अ लेबल, बिकॉज वो एक गाना दो गाना कोई भी सोच सकता है कि हम एक गाना कर लेंगे, इनके साथ 2 गाना कर लेंगे। समवन हु इज स्टैंडिंग विथ यू फॉर अ सीजन एंड ऑल्सो साइनिंग अस फॉर द 5 सीजन्स कमिंग, तो बैकस्टेज के 5 सीजन जितने भी है सब हम ऑलरेडी साइंड है, तो ऐसी हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई। एक्चुअली बताता हूँ कि बहुत लेबल्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया विद अ लॉट ऑफ स्टफ कि हम ये सब कर लेंगे, बट वेर एवर यू हैव अ फैमिली लाइक बॉन्ड, वहाँ पे काम करने में मज़ा आता है। तो देसी तरह का म्यूजिक विद बैकस्टेज सीजन 1 एंड मोर अपकमिंग थिंग्स विल बी द बिगेस्ट लेबल। we're really blessed to have Busy Tadka Music in Yash our bhai life. and everyone. Yash bhai, everyone. Yash bhai is a brother to us, and his vision, it aligns with ours. Like we are growing. So Yash bhai is also like, he has a huge vision, and I respect him so much. We missed you today, but next event पे हम साथ आएंगे. खाना शूटिंग करने के समय सिलसिला में आपका ये डेब्यू गाना माना जाए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एनीथिंग दैट यू लाइक टू शेयर फ्रॉम द शूट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द सॉन्ग? it was a wonderful experience. Actually no, डेब्यू मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि पहले भी मैंने किया है काम, पर ऐसा नहीं किया। फाइनली लाइक मेरे सामने माइक था, मेरे साथ कविता मैम थी, राज बर्मन थे, ये दोनों थे, द होल टीम, यू नो। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा मैंने किया नहीं था। सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने लाइक यू नो जैमिंग किया, और वीडियो पे भी ऐसा लग रहा था दैट वी वर सिंगिंग लाइव।
So it was a dream for me, to collab with Kavita ma'am. एंड मैंने उनको बचपन से ही सुना है, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, ये सब तो हम जानते ही हैं, सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे अभी भी सुनते हैं. सो या आई मीन ड्रीम कम ट्रू हो गया मेरे लिए तो. एंड अगेन लाइक जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है शब्द, पर फिर भी लाइक जस्ट it's a wonderful experience. Any questions, anyone? सबसे पहले आपकी टीम को बहुत बधाई हो, जिस तरह की यंग टैलेंट दिखा रहे हैं, लेके आ रहे हो आप. सेकंड सॉन्ग है आप लोगों का देसी बच्चा के साथ. देखा ये गाने में काफ़ी यंग लोगों को जोड़ा गया है, और जानना चाहते हैं कि जो नाम है सच्चा तेरा प्यार बाकी दुनिया देखा, इसका थीम था, इनका मतलब सोच था किस तरह का नाम रखा जाए. उनका थोड़ा सा बताएं. वो जो अभी चश्मा लिटिल के बाद इनका तो उनका था ये कॉन्सेप्ट. वो मैं अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा था. मैंने कहा कि दुनिया बेकार है, सच्चा तेरा प्यार है, तो उसके लिए लिखा था. इन्होंने उसको कहाँ से कहाँ अरे बस हमसे बैठे थे एंड वी was scrolling Instagram. So there came a thought, when the world feels chaotic but love takes over. तो यही थॉट पे हमने गाना बनाया कि दुनिया बेकार है, सच्चा तेरा प्यार है. दुनिया इज वर्थलेस बट द लव इज ट्रू. सो यस. कास्टिंग की बात करें तो खान जाती को किसने सोचा कि इस तरह की खूबसूरत ब्यूटीफुल लड़की इसमें ठीक हो रहा है, इसको कास्ट किया जाए. एक्चुअली खानजादी को हमेशा से इनको एक है ना एज अ रैपर एंड एन एक्ट्रेस देखा. बट व्हेन आई हर्ड अ वॉइस इन वन ऑफ द रील, तो इट वाज अ रियली डिफरेंट पॉप वॉइस, जो कि इंडिया में एक्चुअल में बहुत कम है, और जो कुछ बड़े सिंगर्स भी है दे ट्राई, बट ऐसा वोकल है नहीं. सो शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेक्सचर, एंड उस टेक्सचर को एक इस गाने में बहुत ज़रूरत थी. सो यू कैन सी कि सॉन्ग एक खिल गया है बिकॉज यू वांटेड दैट पॉप मैं वॉइस. सीख रही हूँ अभी भी, इन्होंने ही सिखाया है. ऑनेस्टली हम लोग 6 घंटे स्टूडियो पे लगातार हमने जैमिंग किया, और तब जाके मैं गा पाई. और मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है कि एक्चुअली जो रियल म्यूजिशियंस हैं उन्होंने मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया, तब जाके मैं ऐसा कर पाई. और मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ और मैं सीख रही हूँ, तो बस. एंड यू किलिंग इट. खान जाती आपको बिग बॉस से पूरा धड़कन बन चुके हैं आप, देखा जाए तो. हम जानना चाहते हैं कि इसके अलावा आपके पाइपलाइन में क्या क्या अभी आने वाला है, इस तरह के लोग. अभी तो मैं कहूँगी म्यूज़िक रिलेटेड चीज़ें ही आएगी. जैसे आपने अभी देखा दुनिया बेकार है, मैंने गाना गाया यहाँ पे. और अभी मेरा कुछ सिंगल प्रोजेक्ट्स है, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स है, जहाँ पे मैं रैप कर रही हूँ. और मेरा एक ईपी आने वाला है जहाँ पे मतलब 5 गाने रहेंगे, और मेरा ईपी का नाम है ज्वालामुखी. सो ये जो रूप था मेरा, ये था चंद्रमुखी, और अब आ रही है ज्वालामुखी. सो स्टे ट्यून फॉर इट. देसी सरकार के साथ अपने म्यूजिक में किस तरह काम करके लगा, सर कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे. सारे टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, गाइड किया. सारे के सारे बहुत अच्छे हैं. और देसी तर का लेबल जो है उन्होंने भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है, मुझे इस लायक समझा है कि मैं गा पाऊँ, और मैंने गाया भी. ट्राई किया तो अच्छा हुआ. सो यस, थैंक यू. हैप्पी बर्थडे आपको. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे टू रमीज. थैंक यू.